All right, students, welcome to this session. This is Ayush and you're watching Eye Contact CLAT. So students, today in this session, I am going to show you something very, very important for your CLAT examination, and that is how to predict your CLAT paper, right? Now we are just left with around 12 days, right? And this is not the time when you start new concepts or read new things. You are just, revising each and everything properly and making sure that you are on a continuous basis attempting mocks as well, right? But this is not sufficient to clear the examination because the competition is so high. So we need really something to out of the box. To we need really something to do something out of the box that makes you worthy of going into an NLU. So with this we are going, I am just going to make your preparation bit easier, and I am going to tell you what questions can actually appear in your CLAT 2026 examination. Not the actual question, but yes, what I am going to tell you is most likely to come in CLAT 2026 examination. So make sure that you are with me throughout the session. And when I'm mentioning that I am going to predict the paper for you, so you must be thinking that I'm just going to waste your time and I'm just going to tell you random things, but that is not the case, students. Anyone can predict the paper, and if you stay with me throughout the session, you can yourself predict the paper for you, right? So what we are going to basically do is that I am going to show you a section wise breakdown, detailed section wise breakdown of last 5 years question papers from 21 to 25, CLAT 2021 to CLAT 2025. We are going to go through the question paper very thoroughly, and I am going to tell you the genres, particular genres or the topics which can be asked in CLAT 2026 examination for each section. So make sure that you are properly attending this session, and we are going to discuss each and everything in detail, like what CLAT has asked in previous years and what is most likely to be asked by CLAT in this year's paper, right? So let's begin with our session without any further ado. So students, it is going to be the most expected question session, right? And we are going to do a full year by year pattern analysis. So let's begin with our session, students, right? All right. So beginning with the most important section, the section with which you are most confused with, and you already have so much doubts around this section कि सर क्या आ सकता है करंट अफेयर से, बहुत ब्रॉड है, बहुत सारा है, कुछ एक दो टॉपिक्स बता दो जो इंपॉर्टेंट है आ सकते हैं, तो हम वही एक दो टॉपिक्स का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे. तो लेट्स सी दिस. So talking about this section A, students, current affairs year wise breakdown. So what I am showing you here is कि CLAT 2021 में जीके करंट अफेयर्स के सेक्शन में से सबसे ज़्यादा डोमिनेंट एरियाज कौन थे जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे थे. बिकॉज जीके करंट अफेयर्स इज़ वेरी वास्ट. कोई कहता है सर मैं बुक्स एंड ऑथर्स भी कर लूँ क्या, मैं स्पोर्ट्स भी कर लूँ क्या, तो हम लोग वही एरियाज यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे. कौन से एरिया ईयर में कौन सा एरिया डोमिनेंट था, उसमें हम लोग पैटर्न एक देखेंगे कि सेम पैटर्न क्या है और वही अप्लाई करेंगे इस साल के पेपर के लिए. ठीक है, तो विद दिस लेट्स बिगिन विद द सेशन. एंड स्टूडेंट्स, यू कैन बेट मी ऑन दिस दैट आफ्टर योर एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू बी हियर ऑन दिस वीडियो अगेन, एंड यू आर गोना feel कि yes, this session was a way helpful for you, because at least you were able to determine certain major topics which are going to be definitely asked in your paper, right? So the dominant areas were international, environment, neighborhood, governance, साइंस टेक. ठीक है, नाउ द फर्स्ट थिंग विच माइट बी कमिंग इन योर माइंड इज कि सर ये आपने अपने मन से लिख दिया होगा, हमें क्या मतलब, राइट? तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ये 5 जॉनराज आप देख लो एक बार: इंटरनेशनल, इन्वायरमेंट, नेबरहुड. नेबरहुड मतलब कि इंडिया के अराउंड का जो पॉलिटिकल टेंशंस चल रही है हमारे नेबरहुड में. ठीक है, मतलब अभी चल रही है 2021 का, क्योंकि ये एनालिसिस है, तो उस टाइम की जो चीज़ें चल रही थी उसके अराउंड. एंड देन साइंस टेक. ठीक है, देन पैसेज थीम्स क्या क्या थे. पैसेज की जो थीम थी वो क्या थी. अभी तो हमने डोमिनेंट एरियाज देखा, ठीक है, मतलब दैट वाज जॉनरा कि इंटरनेशनल, देयर वाज अ डोमिनेंट एरिया इंटरनेशनल. तो इंटरनेशनल जॉनरा जो था उससे क्या थीम पे पैसेज आया. सो इंडिया चाइना एलएसी के ऊपर एक पैसेज आया था. आई एम गोइंग टू शो यू द क्वेश्चन पेपर एज वेल. ऐसा आपको ये ना लगे कि मैं आपको अपने मन से यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ. तो आई एम गोइंग टू शो यू द क्वेश्चन पेपर एज वेल. एंड टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन पेपर, सो यस, हियर इट इज. So students, this is the CLAT 2021 क्वेश्चन पेपर, राइट? ये CLAT 2021 का क्वेश्चन पेपर है. यू कैन सी द हेडिंग एज वेल. ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहला पैसेज किस चीज़ का है, जीके करंट अफेयर्स का. ऑलराइट, सो दिस इज द इंग्लिश पार्ट एंड देन दिस इज द करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज पार्ट, राइट स्टूडेंट्स? अब देखो, आप स्टार्टिंग इन अप्रैल 2020 चाइना amassed a large number of troops and armaments along the disputed line of actual control in eastern Ladakh and other areas along the LAC, leading to standoffs and skirmishes at certain point. LAC वाला आ गया. अब देखो दूसरा,
As soon as the coronavirus hit the world, India emphasized the imperative of collaboration to overcome the inimical health and economic impact of the virus. ठीक है, कोरोना वायरस वाला आ गया. ठीक है, अब यहां पे आप लोग देखिए, कोविड प्लस वैक्सीन डिप्लोमेसी. थर्ड पैसेज की थीम है यूएन बॉडीज, यूएनएचआरसी, यूनेस्को. थर्ड पैसेज थीम क्या है? यूएन बॉडीज. ठीक है, अब देखते हैं यूएन बॉडीज पे क्या पैसेज था कि नहीं था, पहले ये देखते हैं. सो यस, third passage is about there is really nothing new not already anticipated in distressed planet since the emergence of human species life nearly 2 million years ago. So a long prehistory of interfaith dialogue entailing the reciprocal relations between religious traditions and the robustness of the very idea of being human and having rights precedes the recent UN movement of faith for rights. The FOR framework has finally been affirmed by the United Nations system. The Office of the High Commissioner of Human Rights, OCHR, promoted the Rabbit Plan of Action in 2012. Note that this happened after the end of the Cold War, during globalization and soon after 9/11, right? तो ये एक UN के अराउंड का पैसेज आ गया. ठीक है, पैसेज हम the third passage theme was UN bodies. The fourth is Gandhi Peace Prize and the fifth is wetlands environment. ठीक है, तो मतलब ये जी के करंट अफेयर्स की वो थीम्स हैं जिसपे क्लैट 2021 में पेपर आया था. ठीक है, अभी देखते हैं गांधी पीस. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट टू बांग्लादेश congratulated the neighboring country for its 50th year of independence and said that he too had gone to jail while protesting for Bangladesh's liberation. I was about 22 years old when, along with some friends, and I had protested in favor of Bangladesh during its struggle. I even went to jail. Pakistan's atrocities in Bangladesh are well known. The picture didn't allow me to sleep. PM Modi said he also paid respect to the Indian army who fought for the freedom of Bangladesh and also paid respect to Bangladesh's father of the nation, Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman, and conferred upon him the Gandhi Peace Prize 2020. ठीक है, एक और उसी थीम पे आ गया पैसेज. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एटलीस्ट अभी ये फील हो गया होगा कि आई एम हेयर विद फैक्ट्स, right, and I am not just going to give you random guesses. As I said in my video, in the starting of my video, that I am not here to give you random guesses. ये आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ. दिस वीडियो इज फॉर योर पर्पज ओनली. हम इस वीडियो के एंड तक ना आपको एक पूरा आइडिया हो चुका होगा कि लीगल में से क्या आने वाला है, जीके करंट अफेयर्स में से क्या आने वाला है. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड डोंट वरी एट ऑल, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस. ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट थीम्स थे जिन पे पैसेज फ्रेम हुआ था. ठीक है, अब आगे देखिए पैटर्न. एक बार पैटर्न क्या था? क्लैट पिक्ड बिग ग्लोबल क्राइसिस प्लस इंडियाज नेबरहुड प्लस मल्टीलेटरल बॉडीज. तो पैटर्न अभी आपको समझना है यहाँ पे क्या था. क्लैट ने क्वेश्चन कहाँ से उठाया था? बिग ग्लोबल क्राइसिस. ठीक है, इंडिया चाइना एलएसी जो टेंशन हुआ था, इंडियाज नेबरहुड. ठीक है, एंड मल्टीलेटरल बॉडीज, वही जो यूएन वाला क्वेश्चन आया था. तो ये एक हमने पैटर्न निकाल लिया 2021 में. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. अभी आ गया हम लोग क्लैट 22 में. क्लैट 22 में वही सेम चीज हम देखेंगे. डोमिनेंट एरियाज क्या थे, क्वेश्चंस जहां से आए थे, थीम क्या थी पैसेजेस की, और पैटर्न क्या है. ठीक है, तो सो टॉकिंग अबाउट द डोमिनेंट एरियाज, अगेन 21 में भी इंटरनेशनल था, 22 में भी इंटरनेशनल आ गया. इकोनॉमी एक नया आया, 21 में इकोनॉमी के अराउंड नहीं था. डिफेंस नया आया. साइंस टेक अगेन रिपीटेड. इन्वायरमेंट अगेन रिपीटेड. ठीक है, पैसेज थीम क्या थे? इसरो एंड स्पेस मिशंस. नाउ लेट मी जस्ट ओपन द क्लैट 2022 question paper, students. So the 2022 question paper is this one. All right, तो page 12 पे आ गए. See the first passage. When we hear the name space, only one organization comes to mind, the Indian Space Research Organization, ISRO. ठीक है, इसरो के अराउंड गई है पैसेज. ऑल राइट, चलो ठीक है. इसरो प्लस स्पेस मिशंस. सेकेंड थीम थी AFSPA, दैट इज आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट. अब देखते हैं सेकेंड पैसेज. So the second passage is, on December 26, 2021, for the first time since the present government came to power in 2014, the Union Home Ministry constituted a panel led by its officers to review the withdrawal of the armed forces. The act was amended in 1972 and the powers to declare an area as disturbed were conferred concurrently upon the central government along with the states. Currently, the Ministry of Home Affairs (MHA) issues periodic disturbed area notification to extend AFSPA, Armed Forces Special Protection Act, only for Nagaland, Arunachal Pradesh, where it is applicable in the districts of Terap, Chanchalang, Londing, and areas falling under Namsai and Mahadevpur police stations bordering Assam. ठीक है, AFSPA के अराउंड का पैसेज है
राइट। तो मेरा क्वेश्चन पेपर खोलने का पर्पज ही ये है कि आपको ये आइडिया लगे कि मैं इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंच रहा हूँ, मतलब जो इस वीडियो का कंक्लूजन है कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मैं उस कंक्लूजन तक ऐसे ही पहुंचा कि आपको टाइम देना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, एंड आई नो कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत टाइम लगता है, बट इफ यू यू नो डू दैट एफर्ट, सो यू कैन बी someone who can clear that bracket and get yourself into an NLU. So yes, the third was around Russia-Ukraine war. The fourth was green tech and CSR, and the fifth was on drone rules. ठीक है, तो एक बार ये भी कंफर्म कर लेते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर पे था, ठीक है, तो इसका मतलब अगेन इंटरनेशनल, राइट। सो द थर्ड पैसेज पे चलते हैं, अगर हम ये आया, one of the justifications of the Russia-Ukraine war, Russian leaders claimed that military action was necessary to stop Ukrainian attacks on the two breakaway regions of Donetsk and Luhansk, which Russia recognized as sovereign states, right? So President of Russia claimed that Russia could come under attack by Ukrainian far-right government unless their influence in the country is diminished. Russia-Ukraine war पे question है, right? चलो. Then green tech and CSR and then drone rules. तो आई बिलीव अभी तक आपको ट्रस्ट हो गया होगा कि मैं जो यहाँ दिखा रहा हूँ वो मैंने अपने मन से नहीं बनाया, रादर इट इज़ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस विच आई हैव डन एंड प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। सो ड्रोन रूल्स, ठीक है, एक बार और चलो मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ इसमें। सो द नेक्स्ट पैसेज इज ऑफ, राइट, सो every second patent granted in India between 2016 to 2021 is related to green technology, and quarter of the green technology patents as concerning alternative energy productions, coinciding with the center's efforts on enhanced use of green technology for boosting economy and encouraging consumers to use products produced through the use of such technology। ठीक है, तो environment genre के अराउंड ये पैसेज है, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया था GSR के अराउंड। देन फिफ्थ वॉज ये CSR, ठीक है, CSR अभी हमने यहाँ पे मेंशन किया था ना, दिस ग्रीन टेक, ग्रीन का इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अभी अभी हमने जस्ट देखा। देन CSR वाला, अब ड्रोन रूल्स वाला देख लेते हैं। सो ये रहा, ये अभी हम लोगों ने जो ग्रीन टेक का देखा था, ठीक है, GEC के अराउंड। देन ये CSR का, ठीक है, अब इसके बाद लास्ट पैसेज इज ऑन drone Shakti. With the announcement of the drone Shakti in the union budget, the industry got a massive push after the liberalization of the drone rules in 2021, right? तो yes, तो अभी whatever I am mentioning here, I believe कि आपको उस पे एक credibility महसूस हो रही है कि yes, this is something which is presented to you in front of you after a lot of research, and this is not vague information, not just vague information, right? तो अभी इसमें आपको समझ में आ गया होगा पैसेज के डोमिनेंट एरियाज क्या क्या थे, थीम किसके अराउंड थी, अभी पैटर्न यहाँ पे हमें देखना है, जियोपॉलिटिक्स प्लस टेक्नोलॉजी प्लस डिफेंस प्लस इन्वायरमेंट, इसी के अराउंड डोमिनेट था, ठीक है। अभी ये सब मैं करवा क्यों रहा हूँ, ताकि आपके पास जो रिमेनिंग डेज है उनको आप इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय उस टाइम को आप कॉन्सेंट्रेट करके ना जो इंपॉर्टेंट जगह वहां पे इन्वेस्ट करो, राइट। तो मूविंग अहेड इज नाउ जीके फ्रॉम क्लैट 2023 पेपर, राइट। तो अब क्लैट 2023 का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, वहां पे डोमिनेंट एरियाज क्या कहते हैं। सो नेशनल, साइंस टेक, इकोनॉमी लास्ट 2022 में भी था, स्पोर्ट्स अभी ये नया आया है, 2021 में नहीं था, 2022 में नहीं था, 3 मैथ, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, ठीक है। थीम क्या थे पैसेजेस के, प्रेसिडेंट के बारे में था, बिकॉज प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे उसी टाइम में, नई नई खबर थी ये, ठीक है, 2022 में प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे। फिर उसके बाद AI एथिक्स, फीफा वर्ल्ड कप, क्रिप्टो फाउंडर, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अगेन इफ यू वांट आई कैन जस्ट, सो एक बार क्लैट 2023 का पेपर देख लेते हैं। सो द फर्स्ट थीम इज अराउंड प्रेसिडेंट, राइट। तो अभी क्लैट 2023 का पेपर हम लोग देखेंगे। सो दिस इज क्लैट 2023, UG 2023 आपके सामने है ये, ठीक है। अभी इसको अपन देखते हैं। सो करंट अफेयर्स इज फ्रॉम पेज नंबर 12 अगेन, ठीक है, पेज नंबर 12 में होगा करंट अफेयर्स। चलो, so former governor of a state and National Democratic Alliance NDA candidate Draupadi Murmu was elected the 15th president of India, the first tribal woman to be elected to the position and the youngest as well. She was declared elected on Thursday after 4 rounds of counting, although she had crossed the halfway mark after the third round of counting itself, posting an unassailable lead over her rival and the opposition's candidate who conceded the election thereafter, right? So first passage is from the same theme which I have mentioned, right? प्रेसिडेंट। तो अभी आई बिलीव आपको ट्रस्ट हो रहा होगा कि मैं यहाँ पे जो लिख कर आया ये मैंने एनालिसिस करके ही करा है, ठीक है। हम लोग इसको फिर भी बीच बीच में क्रॉस चेक करते रहेंगे। देन AI एथिक्स, फीफा वर्ल्ड कप,
एंड क्रिप्टो फाउंडर, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर. सो दीज वर द मेन पैसेज थीम्स इन क्लैट 2023 पेपर, ठीक है. प्रेसिडेंट हो गए, एआई एथिक्स हो गया, फीफा वर्ल्ड कप, क्रिप्टो फाउंडर, एग्रीकल्चर, ठीक है. पैटर्न यहाँ पे क्या था, इंडिया के थोड़ा अराउंड सेंट्रिक इस बार ज्यादा था, प्लस न्यू इंस्टीट्यूशंस, प्लस ग्लोबल टेक, सोशल थीम्स, ठीक है. तो आपको यही देखना है कि पिछले 3 सालों में जैसे कि कौन सा ऐसा एरिया, जैसे नेशनल है, लगभग तीनों में आया है, ठीक है. साइंस टेक लगभग तीनों में आया, इकोनॉमी 2 बार आ चुका है, स्पोर्ट्स फर्स्ट टाइम आया है, गवर्नेंस आता रहता है, ठीक है. देन मूविंग अहेड टू क्लैट 2024 पेपर, ठीक है. तो जीके फ्रॉम क्लैट 2024 के पेपर में जो डोमिनेंट एरियाज थे वो क्या क्या थे, स्पेस, ठीक है, स्पेस भी हम देख रहे हैं कि आ ही रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है. देन जियोपॉलिटिक्स यानी कि वही इंटरनेशनल, ठीक है. देन ग्लोबल समिट्स, पॉलिटी प्लस हिस्ट्री, ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा स्टैटिक के राउंड का हो गया. देन पैसेज थीम्स क्या क्या थे, चंद्रयान 3 के बारे में पैसेज था, G20 के बारे में था, इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट के बारे में था, हिस्ट्री पॉलिटी हाइब्रिड थोड़ा मिक्स था, ठीक है. पैटर्न क्या था, स्ट्रॉन्ग शिफ्ट टू ग्लोबल इवेंट, ठीक है, प्लस इंडियाज ग्लोबल पोजीशनिंग के अराउंड पैसेज ऑफ फ्रेम हो रहा था, ठीक है. तो अब इसका मतलब आप समझ रहे हो, पैटर्न में अगर यहां लिखा हुआ और आप देख रहे हो कि पैटर्न ऑलमोस्ट सब में एक से ही जा रहा है, ठीक है. यहां पे देखो ग्लोबल इवेंट प्लस इंडियाज ग्लोबल पोजीशनिंग है, पहले वाले में भी देखो इंडिया सेंट्रिक प्लस न्यू इंस्टीट्यूशंस प्लस ग्लोबल टेक्स और थीम्स, ठीक है. इंडिया सेंट्रिक मतलब जो वही हमारी इंडिया की जो पोजीशनिंग है, मतलब हमें इससे एटलीस्ट ये समझ में आ रहा है कि किस टाइप की न्यूज पे अब हमें ज्यादा ध्यान देना है बचे हुए दिनों में, ठीक है. जहां से क्वेश्चन आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, वो मैं आपको फिगर आउट करके दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है. अब ये पिछले साल का पेपर से कहां से क्वेश्चन उठा था जीके करंट अफेयर्स में. सो डोमिनेंट एरियाज वर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इंडियाज नेबरहुड, ठीक है, ग्लोबल ब्लॉक्स, ओलंपिक्स. ओलंपिक्स हुआ था पिछले साल. पैसेज किसके अराउंड था, विमेन रिजर्वेशन बिल के अराउंड था. एक बार हम लोग 25 का पेपर देख लेते हैं, ठीक है. तो ये देखिए स्टूडेंट्स, क्लैट 2025 का पेपर, यस. सो आई बिलीव दिस इज क्लैट यूजी 2025, ठीक है. अभी देखो, in keeping with the slogan for this year's Olympics Games wide open, the opening ceremony took place around the outside a stadium setting by the river for the first time, ठीक है. पेरिस ओलंपिक्स के अराउंड का क्वेश्चन आ गया. पेरिस ओलंपिक्स क्या हमने अपनी थीम्स में मेंशन करा हुआ है, पेरिस 2024 ओलंपिक इवेंट्स, ठीक है, इम्पैक्ट्स, ठीक है. फिर उसके बाद अगला देखते हैं, अगला पैसेज किसके अराउंड है. सो द नेक्स्ट पैसेज इज ऑन Chinese President Xi Jinping and Indian Prime Minister Narendra Modi used a BRICS summit in Russia recently to showcase ambitions for a more harmonious relationship between the world's two most populous countries after years of animosity, ठीक है. अब ये 2021 में भी देखो इंडिया चाइना के बारे में था, 25 के पेपर में भी इंडिया चाइना के बारे में है, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं कि हमने क्या मेंशन किया था यहाँ पे, ब्रिक्स एक्सपेंशन हमने मेंशन किया था, ठीक है. ब्रिक्स के अराउंड का ही वो पैसेज है, ठीक है. तो आप लोग एक बार उसको दोबारा देख सकते हो, ठीक है. द मीटिंग बिटवीन शी एंड मोदी who have not held formal talks for 5 years was on a highlight for summit. BRICS also gave an opportunity to the Russian President Vladimir Putin for showcasing that the West had failed to isolate Russia over the Ukraine war. A final communique listed a number of projects aimed at facilitating trade between BRICS nations, including an alternative payment system to the dollar, but did not include details or timelines, ठीक है. तो yes, एक second students, so let's get back to the question. ठीक है, ये हाँ, ये ओलंपिक्स वाला हो गया, फिर ये ब्रिक्स एक्सपेंशन वाला हो गया, ठीक है. अब ब्रिक्स एक्सपेंशन के बाद नेक्स्ट पैसेज देखते हैं. तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफेक्टिवली एब्रोगेटेड आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गेव असेंट टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2013. अभी आर्टिकल 370 के अराउंड का है, ठीक है. तो अब ये क्या था, आर्टिकल 370 J&K. सो स्टूडेंट्स, व्हाट माय पॉइंट इज कि यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस वीडियो. आई एम हियर विद वेरी फैक्ट्स एंड आई हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन दिस. थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है ये चीज़ें, तो यू कैन नाउ ट्रस्ट मी ऑन दिस. आई हैव शोड यू कि आई हैव टेकन दीज पैसेज थीम्स फ्रॉम द पैसेज देमसेल्व्स, राइट. अपने मन से मैं यहाँ कुछ नहीं लाया हूँ. नाउ जस्ट फोकस ओवर हेयर ओनली, ठीक है. मेरा वो क्वेश्चंस पेपर खोलने का सिर्फ मकसद यही था कि लेट आई विल बी विद प्रूफ शो यू कि दैट आई हैव टेकन दिस कंटेंट फ्रॉम द पैसेजेस ओनली. नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज कि अब जीके करंट अफेयर्स में हमें क्या आ सकता है आगे, ठीक है. सो यस, आर्टिकल 370 J&K के अराउंड था एक पैसेज, राइट. देन ब्रिक्स एक्सपेंशन पे देखा, सिविल डिसोबीडियंस पे था, एंड पेरिस 2024 ओलंपिक इम्पैक्ट्स के बारे में था. पैटर्न यहाँ क्या था, गवर्नेंस प्लस मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, आर्टिकल 370 वाला, एंड ग्लोबल ब्लॉक्स, राइट.
अब मूविंग अहेड इज फाइनल जी के पैटर्न क्या है, तो मतलब जो अब हमारा एनालिसिस है लास्ट पूरे 5 साल का 21, 22, 23, 24, 25 का, वो क्या है। सो अक्रॉस 5 years क्लैट ऑलवेज चूज, क्या चूज करता है, एक लार्ज जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट जरूर चूज करता है। इस साल हमारे पास काफी सारे जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हैं, इंक्लूडिंग ईरान अमेरिका, कंबोडिया थाईलैंड, इंडिया पाकिस्तान। तो मेक श्योर कि आप ये सारे जो मेजर जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स हैं वो सारे आप कवर कर रहे हो, है ना, इंक्लूडिंग रशिया एंड यूक्रेन एज वेल। देन वन मेजर साइंस स्पेस इवेंट्स, ठीक है, गगनयान वाला मिशन इसी साल हुआ है, वी नीड टू मेक श्योर कि हम उसको भी कवर करें। देन शुभांशु शुक्ला जी वाला, तो इस साल के लिए बहुत रेलेवेंट टॉपिक है ये सारे अब जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देन वन ग्लोबल समिट, ठीक है, अभी रिसेंटली में कल ही G20 हुआ था, ठीक है। देन G20 साउथ अफ्रीका ने इस बार होस्ट किया था, नेक्स्ट ईयर अमेरिका करेगा, ठीक है। देन वन बिग इंडियन लॉ पॉलिसी चेंज, काफ़ी सारे पॉलिसी चेंजेस हैं हमारे पास डिस्कस करने को इस साल थे, ठीक है, इंक्लूडिंग वन नेशन वन इलेक्शन, वो सबसे प्रोमिनेंट है, तो वो आई होप कि आपने अच्छे से कर रखा होगा। देन वन सोशल टेक थीम, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली 5 पैसेजेस एवरी ईयर, हर साल 5 पैसेज आते हैं 6 क्वेश्चन के साथ, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन 5 पैसेजेस, ठीक है। एंड दिस इज यू नो एन एनालिसिस बेस्ड अपॉन द लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स। वन सोशल टेक थीम तो जरूर आनी है, ठीक है। देन मूविंग अहेड इज हाउ टू प्रिडिक्ट पेपर। अब हमें समझ में आएगा कि ठीक है इन थीम से आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो अब व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू। सो बेस्ड ऑन 5 ईयर बिहेवियर क्लैट पिक्स वन फ्रॉम ईच कैटेगरी, ठीक है। अब ये कैटेगरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देख लो कौन कौन सी है। वन जियोपॉलिटिकल टेंशन, ठीक है, फर्स्ट। देन वन ग्लोबल एनवायरमेंटल समिट COP20। देन आपका पेरिस, जो पेरिस में डील होती है ना आपकी, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट्स नेम, अभी मैं बता दूंगा जैसे याद आएगा। तो COP20 हो गया आपका, फिर जो मैं पेरिस वाला भी, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट नेम, वो भी याद करके बताऊंगा। तो वो जो मेजर इन्वायरमेंटल समिट्स होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए भी इन्वायरमेंटल समिट्स काफी इंपॉर्टेंट है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का भी इशू है उसमें, ठीक है। देन वन मेजर साइंस टेक शिफ्ट, अब इसमें इस साल डीप फेक काफ़ी चला था बीच में, ठीक है। एंड तो जो भी मेजर साइंटिफिक टेक इशू है, अभी आई एम नॉट डिस्कसिंग दोज टॉपिक्स इन ईयर, काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंटेंट हो जाएगा। एंड देन हम जो यहाँ करने आए थे उस पर्पज से थोड़ा साइड हो जाएंगे, बट वी विल, इफ़ यू विल गाइस कमेंट एंड यू लेट मी नो कि हाँ आपको रिक्वायरमेंट है, तो वी कैन डिस्कस द टॉपिक्स एज वेल, पर्टिकुलर टॉपिक्स। फॉर नाउ आई एम जस्ट डिस्कसिंग द थीम्स, ठीक है। देन वन बिग इंडियन लीगल पॉलिसी चेंज, तो जैसे वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, या जो हमारे लास्ट ईयर क्रिमिनल लॉज चेंज हुए थे जुलाई में, उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर इस साल से चालू हो गया था, इस फुल थ्रू आउट ईयर रहा है, तो वो भी आप एक बार कवर कर सकते हो। देन वन सोशल टेक गवर्नेंस इशू, राइट। सो फॉर 2026 ओनली टॉपिक्स फ्रॉम जनवरी टू नवंबर 2025 क्वालिफाई, राइट, एंड ओनली टॉपिक्स दैट कैन बी टर्न इनटू 4, ठीक है। अब वही टॉपिक्स जो 400 500 400 से 450 वर्ड्स के पैसेज में बन सकते हैं। सो दिस गिव्स अस एग्जैक्टली 4-5 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स। तो अब हमारे पास 4-5 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। कौन से कैंडिडेट्स हैं देख लेते हैं। सो मोस्ट एक्सपेक्टेड थीम्स, पहला COP30 ब्राजील में हुआ था, ठीक है। सो आई थॉट कि वी शुड बी डिस्कसिंग द टॉपिक्स एज वेल साइमल्टेनियसली, तो कंफ्यूजन ना रहे, थोड़ा सा वीडियो बड़ा जाएगा बट लेट्स डिस्कस, ठीक है। सो COP30 वाज होस्टेड इन बेलेम ब्राजील इन नवंबर 2025। Amazon rainforest conservation was the central theme. Climate finance remained the biggest point of conflict. Developing nations demanded scaled up loss and damage funding. Then talks focused on fossil fuel phase out timelines. Indigenous communities played a major role in negotiations. India pushed for equitable carbon budget at COP30. So which country pushed for equitable carbon budget at COP30? India, right? तो मेक श्योर कि आप COP30 के बारे में थोड़ा सा ठीक से देख लेना, जो जो टॉपिक्स अब यहाँ पे आएंगे, ठीक है। सो COP30, देन AI गवर्नेंस 2025 वेव, इसमें क्या है, 2025 सॉ ग्लोबल अलाइनमेंट और AI सेफ्टी प्रिंसिपल्स, डीप फेक्स became the top regulatory priority across nations. India debated a national AI accountability framework. UN discussions highlighted algorithm basic bias and discrimination. BRICS Rio declaration included AI governance cooperation. So which declaration? BRICS Rio declaration. Then copyright disputes over AI generated content peaked in 2025. ठीक है, तो AI governance के बारे में ठीक से देख लेना। Then India China border talks, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, 2021 में भी आया था यहाँ से क्वेश्चन, इस साल भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने की, तो मेक श्योर ये भी आप कर लो, ठीक है। सो मल्टीपल कॉप्स कमांडर लेवल मीटिंग रिज्यूम्ड इन 2025। ये जगहों का नाम होना आपको याद होना चाहिए, देपसांग एंड डेमचौक, दे वर द की फ्रिक्शन पॉइंट्स डिस्कस्ड।
talks focused on restoring old patrol points, new CBMs proposed joint verification and communication channels, both sides agreed to forward deployments and dialogue revived after a long stagnation since 2020-21. ठीक है, तो इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेक श्योर आप इसे अच्छे से करके जाओ, ठीक है। देन मूविंग अहेड इज ब्रिक्स 2025 समिट, ठीक है, ब्रिक्स से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। सो ब्रिक्स 2025 समिट रियो डी जेनेरियो hosted by Brazil in 2025, focus on global south integration. Rio declaration prioritized AI regulation, climate finance, UNSC reforms. BRICS expanded membership active for first full year, and India pushed for multilateral reform and development banking, right? राइजिंग ऑयल प्राइसेस 2025 स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट इशू, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मेक श्योर इसको भी आप अच्छे से करके जाना। राइजिंग ऑयल प्राइसेस 2025, रेड सी डिसरप्शन 2.0 एंड ग्लोबल शिपिंग क्राइसिस, ठीक है। सो 2025 सॉ रिन्यूड अटैक्स इन द रेड सी शिपिंग, ये पता होना चाहिए आपको, रेड सी शिपिंग लेन, डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल ट्रेड रूट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स फॉर कार्गो शिप्स skyrocketed, increasing transport costs worldwide. OPEC क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें। OPEC प्लस फेस्ड प्रेशर टू स्टेबलाइज सप्लाई एज ऑयल प्राइसेस स्पाइक्ड थ्रू मिड 2025. डेवलपिंग कंट्रीज वर हिट हार्डेस्ट ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड import dependency, ठीक है। इंडिया पुश फॉर अल्टरनेटिव रूट्स एंड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स टू कुशन वोलेटिलिटी, ठीक है। Then those 5 were the most important topics. Now these are some other high probable topics as well, उन्हें भी देख लेते हैं। So global AI governance, ठीक है, global AI governance we have already done. Then ISRO 2025 SpaceX plus Gaganyaan phase up. So SpaceX demonstrated docking maneuvers crucial for future space station operations. India completed preparation for the second uncrewed Gaganyaan test flight. LUPEX mission planning with Japan advanced, focusing on lunar exploration. ISRO emphasized indigenous capability and long-term human spaceflight goals. 2025 reinforced India's pursuit of strategic autonomy in space tech, right? Then next is global food security 2025. तो स्टूडेंट्स आप लोग फोटो ले लो इस कंटेंट की, आई एम गेटिंग असाइड, ठीक है। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी 2025, देन लास्टली इज इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2025 स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको अभी जीके करंट अफेयर्स में एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि आपको मेजरली अब अगले 10 दिन कहाँ ध्यान देना है। बहुत कुछ है जीके में, ऐसा नहीं है इसके बाहर से नहीं आ सकता है, बट व्हाट आई हैव शोन यू इज द ब्रेकडाउन ऑफ द एनालिसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स की ज़्यादा हाई प्रोबेबल टॉपिक्स क्या रहते थे, जॉनरास क्या रहते थे, जो पैसेज की थीम होती थी वो क्या होती थी, और उसके बेसिस पे इस साल कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको टॉपिक्स सारे के सारे दिखाए, ऑयल वाला, ब्रिक्स का, ठीक है, स्पेडेक्स का, जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखाए आप सब कर लेना, पक्का क्वेश्चन आने की पूरी चांस है, ठीक है। देन मूविंग अहेड इज नाउ सेक्शन बी लीगल रीजनिंग। नाउ दिस इज गोना बी लीगल रीजनिंग ब्रेकडाउन। अभी हमने जीके करंट अफेयर्स किया, अब सेकंड कंफ्यूजन होता है लीगल में कि सर हम मिसलेनियस लॉस कौन कौन से कर लें, ठीक है, हम क्या करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स क्या करें। तो अब यहाँ पे देखते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सेक्शन बी इज अबाउट लीगल रीजनिंग ईयर वाइज ब्रेकडाउन, ठीक है। तो फ्रॉम क्लैट 2021 में डोमिनेंट एरियाज क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है। अब एक बार हम लोग फिर से 21 का मैं आपको पेपर खोलूंगा और मैं लीगल रीजनिंग में भी दिखाऊंगा कि जो मैंने यहाँ पे एरियाज मेंशन किए क्या वहां से क्वेश्चन आया है या नहीं आया, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, मिसलेनियस लॉज, जो हमारे बेसिक लॉज हैं वही सारे मेंशन्ड है, ठीक है। और उसके आगे टॉपिक भी मैंने मेंशन किया है कि टॉर्ट लॉ में भी फिर कहाँ से क्वेश्चन आता था। तो वायलेंसी नॉन फिट इंजूरिया, बेसिकली ये क्या है कि एक एक्सेप्शन है, ठीक है, डिफेंस है, बेसिकली ये एक डिफेंसेस है, डिफेंसेस होते हैं ना टॉर्ट्स में। सो वायलेंसी नॉन फिट इंजूरिया इज अ डिफेंस। तो नाउ लेट्स लुक एट द क्लैट 2021 क्वेश्चन पेपर लीगल रीजनिंग सेक्शन। सो दिस इज क्लैट 2021, ठीक है। अब एक बार लीगल रीजनिंग देख लेते हैं। सो दिस इज द लीगल रीजनिंग सेक्शन स्टूडेंट्स। Harm suffered voluntarily does not constitute a legal injury and is not actionable, ठीक है। This principle is embodied in the maxim Violency non-fit injuria. Violency non-fit injuria क्वेश्चन आ गया, ठीक है, टॉर्ट से आ गया। अब अगला देखते हैं पैसेज। So next passage is, it is essential to the creation of contract that both parties should agree to the same thing in the same sense. So mutual consent, which should also be a free consent, is the sine qua non of a valid agreement, and one of its essential element is that a thing is understood in the same sense by a party as is understood by the other, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का भी आ गया एक पैसेज, राइट। तो
ठीक है, इसके आगे देखते हैं और क्या क्या पैसेजेस है, थीम देखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। अगेन कॉन्ट्रैक्ट के 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 2 पैसेजेस हो गए हैं, ठीक है। देन कॉन्ट्रैक्ट का 3rd पैसेज, जो टॉपिक्स है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वही टॉपिक वहां पे भी मेंशन्ड है, ठीक है। तो 3 पैसेजेस आर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। देन द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा रिक्वायर्स दैट अ पार्टी शुड नॉट बी अलाउड टू फाइल सेम मैटर, ठीक है। अब ये दिस इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रेस जुडिकाटा। अब ये किस थीम में फिट बैठेगा? सो इट इज फ्रॉम मिसलेनियस लॉस, ठीक है। अब टॉर्ट में वॉयलेंसी नॉन फिट इंजूरियस से क्वेश्चन था, कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट कम्युनिकेशन का था 2nd पैसेज, 3rd वाज फ्रॉम रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीजर्स, ठीक है। तो आई बिलीव आप यू आर सेटिस्फाइड दैट यस आई एम शोइंग यू you know not a no, I'm not showing you something vague but a proper research analysis work, right? So अभी यहाँ पे देख लो आप डोमिनेंट एरियाज क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ में भी मैरिज एंड डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, एंड मिसलेनियस लॉज में सर्विस लॉ, रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का मतलब होता है कि अगर सेम फैक्ट्स के साथ कोई केस कोर्ट में डिसाइड हो चुका है पहले, तो उसी सेम फैक्ट्स का अगर कोई कोर्ट में दूसरा केस आता है, नहीं सॉरी, रेस जुडिकाटा का बेसिकली मतलब होता है कि अगर कोई केस डिसाइड हो चुका है एक कोर्ट में, तो अब आप उसे ले जाके दूसरे कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज रेस जुडिकाटा। देन पैसेज थीम देख लेते हैं क्या थी 2021 में। तो मैरिज एंड डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, वॉइडेबल ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्सेस, देन वॉयलेंसी नॉन फिट इंजूरिया एंड assumption ऑफ रिस्क इन टॉर्ट, then consent and criminal liability under IPC type provisions, then free consent, misrepresentation, fraud and communication of proposals in contract law, agreement in restraint of legal proceedings, compassionate appointment in public employment and doctrine of res judicata. So these were the main themes from which the passages were framed, right? Pattern हमने यहाँ पे क्या मेरे हिसाब से मतलब व्हाट वाज द पैटर्न हियर। सो माय एनालिसिस इज दैट स्ट्रेटेजिक फर्स्ट ईयर एलएलबी डॉक्टोरल पैसेजेस, ये सारे टॉपिक्स आप अपने फर्स्ट ईयर में लॉ में पढ़ते ही हो, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर एलएलबी डॉक्टोरल पैसेजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, आईपीसी, फैमिली लॉ प्लस 1 और 2 पब्लिक लॉ कंसेप्ट्स, ऑलमोस्ट 0 करंट अफेयर्स लिंकेज। 2021 में कोई करंट अफेयर्स के साथ लिंकेज नहीं है लीगल रीजनिंग का, ठीक है। ये एनालिसिस है 2021 के पेपर का। नाउ मूविंग अहेड फ्रॉम क्लैट 2022 डोमिनेंट एरियाज अब क्या कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डोमिनेंट था, फंडामेंटल राइट्स, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, रिट्स, यहां से कुछ पैसेज आया था। देन इंटरनेशनल लॉ प्लस ट्रीटीज, देन फैमिली लॉ। तो फैमिली लॉ में कहां से था, बाइगैमी, स्पेशल मैरिज एक्ट, डाइवोर्स, क्रिमिनल लॉ, बाइगैमी एज एन ऑफेंस, ठीक है। देन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, मिस्टेक प्लस इन्वायरमेंट, इकोसेंट्रिक जूरिस्प्रूडेंस। तो आप देख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट इज अ रियली डोमिनेंट एरिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इससे पिछले में भी आया था एंड फैमिली लॉ से भी आया था, अभी इंटरनेशनल लॉ इज द न्यू, ठीक है, जिसमें 21 में पैसेज नहीं था, 2022 में आया है। सो पैसेज थीम यहाँ पे क्या थी, मोनिज्म वर्सेस डुअलिज्म एंड ट्रीटी, डोमेस्टिक लॉ इंटरफेस, इंटरनेशनल लॉ का हो गया, बाइगैमी। अच्छा एक बार देख लेते हैं इसको 2022 के पेपर से मिला के भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इफ वी गो टू दी क्लैट 2022 क्वेश्चन पेपर, सो यस दिस इज द क्लैट 2022, यस। तो यहाँ पे अभी हम लोग लीगल का देखते हैं, खोलते हैं, ठीक है, लीगल रीजनिंग का। सो दिस इज लीगल रीजनिंग। तो पहला पैसेज ही आ चुका है रिट का। रिट इज अ पब्लिक लॉ रेमेडी, इट रेफर्स टू अ फॉर्मल रिटन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या रिट से क्वेश्चन मैंने मेंशन करा है। सो रिट ऑफ मैंडेमस एंड जुडिशियल कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो रिट ऑफ मैंडेमस से क्वेश्चन आया था, देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिट ऑफ मैंडेमस से क्वेश्चन आया है। ओके, सो पैसेज बंद हो गया है, लेट्स ओपन दिस। All right. So writ is a public law remedy. It refers to a formal written order issued by judicial authority directing an individual or authority to do or refrain from doing an act. The High Court, while exercising its power of judicial review, does not act as an appellate body. It is concerned with illegality, irrationality, and procedural impropriety of an order passed by the state or statutory authority. ठीक है, तो रिट के अराउंड से क्वेश्चन हो गया। ये देखो, रिट ऑफ मैंडेमस इज रिक्वेस्टेड टू बी, तो रिट ऑफ मैंडेमस का पैसेज है, ठीक है। Second is to maintain the secular character of Indian polity. Not only does the Constitution of India guarantees freedom of religion to individuals and groups, but it is also against the general policy of the Constitution of India that any money be paid out of public funds for promoting or maintaining any particular religion. Accordingly, it is provided in the Constitution of India that no person shall be compelled to pay any taxes. ठीक है, freedom of religion के अराउंड का क्वेश्चन है, पैसेज है। So
यहाँ पे हम लोग का फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो एक बार हम लोग ये मोनिज्म वाला देख लेते हैं पैसेज, ठीक है, कि क्या इंटरनेशनल लॉ से क्या पैसेज आया था। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ, ठीक है, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये फंडामेंटल राइट्स का है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ XYZ यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली, नहीं। वेयर अ स्पाउस कॉन्ट्रैक्ट्स अ सेकेंड मैरिज, नो नो नो। A special marriage that is a marriage between persons from two different religious affiliations, ठीक है, तो हमने स्पेशल मैरिज का भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड ये रहा, देर आर टू प्रिंसिपल थ्योरीज ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड डोमेस्टिक लॉ, मोनिज्म एंड डुअलिज्म, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई बिलीव कि यू आर अज्यूमिंग कि अभी हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज अ वेरी थॉरो डिटेल्ड एनालिसिस, राइट। तो अब जो थीम यहाँ पे मेंशन है एक बार देख लेते हैं। मोनिज्म एंड डुअलिज्म एंड ट्रीटी, डोमेस्टिक लॉ इंटरफेस, ठीक है। बाइगेमी एज एन ऑफेंस, and its ingredients, then divorce under special marriage act, mistake in contract, void versus voidable, unilateral bilateral mistake, freedom of religion and reasonable restrictions, writ of mandamus and judicial control of the executive, and ecocentrism and nature centric environmental jurisprudence, ठीक है। पैटर्न यहाँ पे क्या है, डॉक्ट्राइनल कोर रिमेन्स, जो डॉक्ट्रीन वाला कोर एक है जो अभी हमने पिछले क्लैट 2021 के पेपर में देखा था, वो अभी भी है, बट क्लैट स्टार्ट स्नीकिंग इन करंट फ्लेवर्ड इश्यूज, इकोसेंट्रिज्म, इंटरनेशनल लॉ विद इन स्टैटिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब 2022 से धीरे धीरे से स्टार्ट करा है क्लैट ने, चुपके से थोड़ा सा करंट का एलिमेंट डाला है लीगल में भी, ठीक है। अब लीगल फ्रॉम क्लैट 2023 में से देख लेते हैं। सो डोमिनेंट एरियाज वर जुवेनाइल जस्टिस, चाइल्ड राइट्स, ठीक है, एनवायरमेंटल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ चुका है। अब कॉन्ट्रैक्ट आप देख रहे हो कि अभी तक तीनों में आया है, 21 में भी, 22 में भी एंड 23 में भी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तीनों में आया है। देन आपका इन्वायरमेंटल लॉ भी ऑलमोस्ट आया ही है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, GI इंडिकेशन का क्वेश्चन, क्रिमिनल लॉ आ चुका है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। एग्जाम मैल प्रैक्टिस, ID Act 2022, क्रूएल्टी, डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पैसेज की थीम्स क्या क्या थे? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ वर्सेस चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर, ट्रायल एज एडल्ट, रिहेबिलिटेशन, देन एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशंस एंड क्लाइमेट कंसर्न्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूट्स, then void versus voidable contract, unlawful consideration, misrepresentation, coercion, GI protection, geographical indicators, Darjeeling T type scenarios and TRIPS obligation, then criminal procedure identification act 2022, expanded police powers and privacy, then public examination bill act style framework on unfair means in competitive exams, digital data protection and algorithmic profiling, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ट्रांसपेरेंसी वर्सेस प्राइवेसी ऑफ डोनर्स, ये देखो आप अब थोड़ा सा करंट से आने लग गया है 23 में ढंग से, ठीक है। देन सेरोगेसी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव रेगुलेशंस, मतलब अब आप यहाँ पे देख रहे हो जो डॉक्ट्राइनल वाला एक जो पार्ट था वो अब धीरे धीरे से हट रहा है, ठीक है। पैटर्न यहाँ पे क्या है, क्लियर पाइवोट टू कॉन्स्टिट्यूशन प्लस पॉलिसी प्लस टेल, स्टिल डॉक्ट्राइनल बट एवरी पैसेज नाउ हैज अ लाइव पॉलिसी कंट्रोवर्सी, ठीक है। जो रिसेंट की जो उस टाइम की मतलब 2023 का पेपर है, तो जो पॉलिसी के साथ जो कंट्रोवर्सीज थी लॉस को लेकर वो भी अब आ रही थी, प्राइवेसी, एग्जाम, एनवायरमेंट, इलेक्टोरल फंडिंग, मतलब जो भी जो रिसेंट जो इश्यूज थे ना, इलेक्टोरल बॉन्ड बड़ा मुद्दा था, उसके अराउंड अब समझ रहे हो आप क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं 2023 से। देन फ्रॉम 2024, ठीक है, तो डोमिनेंट एरियाज यहाँ पे अगेन जुवेनाइल जस्टिस अब एक डोमिनेंट एरिया बन गया, रिपीट हो रहा है, ठीक है। टॉर्ट लॉ, ठीक है, ऑनलाइन डिफामेशन, मीडिया एंड प्रेस रेगुलेशन, डेटा प्रोटेक्शन लॉ फिर से रिपीट हुआ है, फैमिली लॉ थोड़ा सा वो रिवाइव हुआ है, ठीक है, एंड क्रिमिनल लॉ, एग्जाम मैल प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब आप जैसे देख रहे हो ना, नीट के पेपर के टाइम दिक्कत हुई थी, इस टाइम आजकल आप देख रहे हो कि लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम में कुछ ना कुछ हो ही रही दिक्कत, SSC के पेपर में भी प्रोटेस्ट हुआ था, तो वो सब इश्यूज भी अब समझ रहे हो, उनके अराउंड के जो लॉज है वो भी अब आपसे पूछे जा रहे हैं, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लीगल में भी क्या इंपॉर्टेंट है। सो पैसेज थीम्स, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, प्राइवेसी ऑफ जुवेनाइल्स and board rules, online defamation and intermediaries, civil versus criminal liability for harmful content, press and registration of periodicals bill 2023, registration regulation, free press concerns, digital personal data protection act 2023, consent, rights of data principles, state exemptions, void and voidable marriage, फ्रॉड, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, एज कंसेंट। अच्छा, आप देख रहे हो फैमिली लॉ में भी क्वेश्चन अराउंड मैरिज ही फ्रेम हो रहा है, ठीक है, थोड़ा इस पे ध्यान देना आप।
थीम कंटिन्यूटी, पब्लिक एग्जाम अनफेयर मीन्स एज क्रिमिनल लॉ एंड गवर्नेंस इश्यूज, ये अब देख रहे हो आप हर साल आ रहा है, ठीक है। 24 इसमें भी है, 23 में भी था, 22 में भी था। पैटर्न, लीगल सेक्शन बिकम्स हैविली करंट अफेयर्स एंकर, ठीक है। अब यहां से ना क्लैट 2024 से जो लीगल सेक्शन है ये थोड़ा सा हैविली करंट अफेयर्स की तरफ अब इंक्लाइन हो गया, करंट लीगल इश्यूज उठा रहा है, ठीक है। एवरी पैसेज इज आइदर अ न्यू स्टैट्यूट बिल, ठीक है, और अ क्लासिक डॉक्ट्रिन रिफ्रेम्ड थ्रू 23-24 डेवलपमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप ट्रेडिशनल लॉज देख रहे हो वो थोड़ा सा करंट के साथ ज्यादा इंडल्ज होके आ रहे हैं, ठीक है, अपने स्टैटिक फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। नाउ लास्ट ईयर के क्लैट 2025 के पेपर से डोमिनेंट एरियाज क्या कहते हैं, अगेन जुवेनाइल जस्टिस, चाइल्ड राइट्स, ये आप अपने लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इन्वायरमेंटल लॉ एंड क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है, थोड़ा सा ये भी अब इंपॉर्टेंट हो चुका है, आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट से भी आप पैसेज एक्सपेक्ट करके चलो पूरा पूरा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जियोग्राफिकल इंडिकेशन 2 बार आ चुका है, ठीक है, दूसरी बार अभी रिपीट हुआ है। क्रिमिनल लॉ, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, स्टूडेंट्स पब्लिक एग्जामिनेशन अब आप समझ रहे होगे, इससे पहले हो सकता है आप उतना ज्यादा ना फिगर आउट कर पा रहे हो, लेकिन अब आपको आंखों के सामने दिख रहा है कि हाँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बार बार आपको ना खोल के क्वेश्चन पेपर क्रॉस चेक इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि टाइम थोड़ा सा ना वीडियो बहुत लंबा होने लग जाएगा, बट आई हैव फ्रीक्वेंटली ओपन द क्वेश्चन पेपर and presented that whatever I am showing you here is being taken from the question papers only, so at least आपको एक वो ट्रस्ट रहे, इतना ना लगे कि यार मैं इतनी देर से वीडियो देख रहा हूँ मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, रादर दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट थिंग वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम, राइट। देन डेटा प्रोटेक्शन, टेक रेगुलेशन, ये भी आप अपने लिए एक्सपेक्ट करना, ये अब इंपॉर्टेंट हो चुका है, हर साल आ रहा है, ठीक है। डोमिनेंट एरियाज ये थे, अब एक बार पैसेज थीम देख लेते हैं, 6 पैसेज थे, ठीक है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, हीनियस ऑफेंसेस, ट्रायल एज एडल्ट, प्राइवेसी ऑफ जुवेनाइल्स, ठीक है, एनसीआरबी डेटा ऑन जुवेनाइल क्राइम, इसके अराउंड थे जेजे एक्ट से क्वेश्चन। देन कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वायरमेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 48A, 51AG, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी एंड राइट्स अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, पेरिस एग्रीमेंट, अच्छा हाँ वही जो पेरिस एग्रीमेंट में उस टाइम याद करने जा रहा था जीके में, वही था, ठीक है। देन वॉइड वर्सेस वॉइडेबल एग्रीमेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, कंसेंट विटिएटेड बाय मिस्टेक, कोर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, जीआई एक्ट 1999, जीआई टैग्स, mislabeling, TRIPS compliance, then public examination, prevention of unfair means act 2024, organized cheating, paper leaks, liability of service providers, then digital personal data protection act 2023, ठीक है, data principal rights, erasure, purpose limitation and government exceptions, ठीक है। पैटर्न, अगर पैटर्न की बात करें तो by 2025 legal is purely doctrine plus cutting edge statute, ठीक है। Then every passage is from a brand new legislation or a high priority doctrinal area heavily in the news, climate data, exams, ठीक है। तो आई होप कि ये जो हम लोगों ने अभी 4-5 साल का जो एनालिसिस किया है लीगल का, अब इससे हम लोग अपने पेपर के लिए क्या मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आफ्टर अक्रॉस 5 years क्लैट लीगल रिपीट्स द सेम स्ट्रक्चर बिहेवियर, ठीक है। एक ही स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, रिपीट एक ही चीज, जो कोर डॉक्ट्रीन है ना, जो कोर डॉक्ट्रीन से लीगल की, जैसे कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट में हो गई तो जो कंसेंट है, वॉइड है, वॉइडेबल है, टॉर्ट में, आईपीसी बीएनएस में जो उसके स्टाइल के ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। देन रेट्स, एफआर, फैमिली लॉ, मतलब ये सब किसी ना किसी फॉर्म में आया है हर साल, ठीक है। हमने जो अभी एनालिसिस किया आपने देखा ना, या तो अपने स्टैटिक पोर्शन में या फिर वो लीगल के साथ 2022 के बाद से जब इंडल्ज होके आने लग गया था। तो ये हो गया आपका कोर डॉक्ट्रिन नेवर डिसअपियर्स, कोर डॉक्ट्रिन तो आपकी रहनी ही रहनी है, मतलब इनमें आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। फिर वन चाइल्ड जेंडर फैमिली प्रोटेक्शन पैसेज एवरी ईयर, हर साल आप देख रहे हो कि एक कोई चाइल्ड जेंडर फैमिली प्रोटेक्शन के पैसेज हर साल आ रहा है। एचएमए डाइवोर्स 2021 में, बाइगैमी डाइवोर्स 2022 में, सेरोगेसी फैमिली थीम 2023 में, वॉइड मैरिज एंड जेजे एक्ट 2025, 23 और 23 से 25 में आया है, ठीक है। देन वन इन्वायरमेंट क्लाइमेट इकोलॉजी पैसेज, मतलब आप समझ रहे हो कि जो हम लोग एनालिसिस कर रहे थे हर साल का, उससे अब ये हम लोग इस कंक्लूजन पे आए कि एक एक पैसेज इन पर्टिकुलर एरिया से तो आया ही आया है, ठीक है। तो वन फ्रॉम इन्वायरमेंट क्लाइमेट इकोलॉजी पैसेज, ठीक है, मोस्ट ईयर्स, इकोसेंट्रिज्म 2022, इन्वायरमेंटल लॉ 2023, क्लाइमेट जस्टिस पैसेज 2025, एटलीस्ट वन टेक मीडिया लॉ पैसेज, ठीक है, एटलीस्ट वन टेक डेटा मीडिया लॉ पैसेज इन द लास्ट 3 years, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन में जैसे मैं कह रहा हूं क्वेश्चन आ रहा है पिछले 3 साल से, ठीक है। एंड एग्जाम आईडी लॉस, डीपीडीए प्लस ऑनलाइन डिफेमेशन प्रेस बिल 2024, डीपीडीए अगेन 2025 डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है, ठीक है। देन आपका पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट एंड जेजे एक्ट बिकम सुपर रिपीटेड, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है। पब्लिक एग्जाम्स का प्लस डीडीपीए प्लस जेजे
जुवेनाइल जस्टिस अपीयर अक्रॉस 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 2023 में आया, 24 में आया, 25 आया, किसी ना किसी फॉर्म में आया, एंड देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी फिर आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज इस वीडियो को आप लोग बार बार देखो और बार बार इस वीडियो से जितना आप समझ ले सकते हो लो, क्योंकि मैं बिल्कुल कोर टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। पेपर के बाद आप आगे कहना कि सर आपने बताया था इस पर्टिकुलर टॉपिक से आएगा पैसेज, ठीक है। सो क्वेश्चन स्टाइल पैटर्न इज स्टेबल, क्वेश्चन जो फ्रेम करने का स्टाइल है वो सेम है, ठीक है। रूल्स प्रिंसिपल्स बेक्ड इनटू पैसेज इटसेल्फ, 4-6 हाइपोथेटिकल्स पैसेजेस होते हैं मिक्स्ड विद वन लाइनर्स, एंड नो एक्सटर्नल नॉलेज इज नीडेड, बट यूर आर पनिश्ड इफ यू कैंट रीड स्टैट्यूट्स प्लस पॉलिसी आर्टिकल्स, ठीक है। तो आपको मेक श्योर कि जो भी रिसेंट के स्टैट्यूट्स हैं वो पता हो क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो, यू कैन टेक द फोटो ऑफ इट एज वेल। देन मूविंग अहेड, how to predict this paper, this year's legal reasoning section. So from this 5-year pattern, CLAT almost picks one passage from each bucket. अब वो buckets देख लेते हैं जहां से CLAT क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक है, पिछले काफी टाइम से। सो स्टैटिक डॉक्ट्रिन बकेट की अगर हम बात करते हैं, जो पहली बकेट है हमारी, ठीक है, उसमें से जो कोर एलएलबी आपके जो कोर लॉ के जो एरियाज है, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली लॉ, क्रिमिनल, जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। सेकेंड इज चाइल्ड जेंडर वल्नरेबल ग्रुप्स बकेट, जिसमें आपका जुवेनाइल जस्टिस, वुमेन राइट्स, मैरिज, सक्सेशन, रिजर्वेशन, इसके अराउंड। देन थर्ड इज इन्वायरमेंटल फंडामेंटल राइट्स बकेट, ठीक है। थर्ड इज इन्वायरमेंटल, क्लाइमेट, पॉल्यूशन, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन्स, आर्टिकल 21, 14, 18, 48A, 51A, GSRA। देन डिजिटल टेक डेटा मीडिया बकेट, DDPA, ठीक है, आपके IT रूल्स, AI, सोशल मीडिया लाइबिलिटी, डीप फेक्स, ये सब। एंड देन गवर्नेंस पब्लिक इंस्टीट्यूशन बकेट, जिसमें से फिर वो पब्लिक एग्जाम एक्ट, ठीक है, एक्सेस टू जस्टिस, रिजर्वेशंस, अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट एंड रेगुलेशंस। सो दीज आर द 5 buckets from which you can expect passages again. Let me just repeat it. स्टैटिक डॉक्ट्रिन बकेट एक होगी, जिसमें से बिल्कुल कोई कोर एलएलबी का एक पैसेज आएगा इनमें से किसी एक टॉपिक में। देन चाइल्ड जेंडर वल्नरेबल ग्रुप्स के अराउंड एक हमने फिगर आउट किया, आ रहा है। इन्वायरमेंट प्लस फंडामेंटल राइट्स में से जरूर आ रहा है। देन डिजिटल टेक डेटा मीडिया बकेट इनमें से जरूर आ रहा है। Then governance public institutions bucket, ठीक है। So for CLAT 2026 the high yield window is roughly Jan to November 2025 with 2024's major structural changes like new criminal codes which are still very much alive and examinable. Yes, it might be asked. CLAT will only choose these topics. CLAT will only choose topics that can be turned into a 450 word principle rich passage with clear rules, 4-6 hypotheticals. That requirement itself knocks out a lot of random news and leaves a small pool of legal themes, ठीक है, जिसमें legal themes बन रही होगी, वही उतना ही part आपके लिए बच रहा है। So this is most important for you. Then मोस्ट एक्सपेक्टेड थीम्स, अब फाइनल 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड थीम्स कौन सी, ठीक है। तो अभी तो हमने जो देखे थे वो भी कोर एरियाज हैं, लेकिन अभी न्यू क्रिमिनल कोड्स इन प्रैक्टिस है, तो अभी क्रिमिनल कोड्स से भी आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। कैसे हो सकता है? सो बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएसएस एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए रिप्लेस्ड आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट। मोस्ट प्रोविजंस केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2024। इसमें कुछ न्यू ऑफेंसेस ऐड हुए थे, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अब क्योंकि इस साल दिल्ली ब्लास्ट वाला भी सीन है, पहलगाम अटैक का भी, तो पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चंस इन इसके अराउंड जरूर फ्रेम हो सकता है, ठीक है। मॉब लिंचिंग, एनवायरमेंटल ऑफेंस एंड स्टिल shift focus to victim centric justice and speedy trials, mandate digital evidence capture, example section 57 BNS, a digital documentation of arrest crime scenes with real world issues. All right, then deep fake, AI content and data protection IT rules. So in 2025 government proposed amendments to the IT intermediary guidelines and digital media ethics code rules 2021 to mandate labeling of AI generated synthetic content and tighten due to diligence of intermediaries targeting deepfakes and misinformation. Then the amendments define synthetically generated information, require proactive detection and labeling, and raise debates on safe harbor versus censorship and burden on intermediaries, ठीक है। DPDA 2023 is still central, now explicitly invoked against deepfakes using personal data without consent, and internationally 2025 also saw UN level moves on AI governance, global dialogue on AI governance, international scientific panel, and AI for humanity narrative, right? Then climate change as a fundamental right and environmental duties, तो इसका भी स्टूडेंट्स आप लोग फोटो ले लो, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट थीम्स है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देन आपका पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट एंड ऑर्गेनाइज चीटिंग, 4th ईयर कंटिन्यूटी रिस्क, मतलब कि 3 साल से आ रहा है, 4th ईयर फिर आ सकता है, ठीक है। तो ये सब ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ ही चुके। फॉर योर रिवीजन आई हैव प्रिपेयर्ड दिस मच स्लाइड, सो यू कैन टेक द फोटो ऑफ इट। देन रिजर्वेशन, इक्वालिटी एंड सब क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लेना।
This all things we have already covered throughout the year. You just need a revision. So okay, you can take the screenshot of it and just read it, right? Then other high probable legal topics. So JJ Act and child privacy बहुत important है. Then surrogacy, ठीक है? Surrogacy, adoption and family law. Then India AI governance and consumer competition law in digital markets, right? देन स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन सी दैट इज इंग्लिश, ठीक है? अभी इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा, अब आपको लग रहा होगा सर इंग्लिश में अब क्या करना, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में भी जो क्लैट के आरसीज होती हैं वो कोई बेसिक आपके 12th वाले आरसीज नहीं होते, रादर दे आर वेरी हाई लेवल आरसीज। सो हम लोग 21 से लेकर 25 तक देखेंगे कि कौन से जॉनराज से आरसीज आ रहा है, इंटेंट क्या होता है एग्जामिनर का आरसीज में, आरसीज देकर के वो आपसे क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम कर रहा है, ठीक है? तो लेट्स have a view over it as well. So if we talk about English from CLAT 2021 total 6 passages were asked. Difficulty if we talk about, so hardest of the last 5 years, सबसे tough 2021 का था मेरे हिसाब से, ठीक है? So dominant genres वहाँ पे क्या क्या थे? So philosophy, modern history, governance, कल्चरल थ्योरी, टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी एंड लिटरेरी नॉन फिक्शन। सो आप ये देख रहे हो कि ज़्यादातर फिक्शनल एसेज नहीं होते हैं, यही से आप डिफरेंशिएट कर लो कि आपके जो 12th में आरसीज होते हैं वो फिक्शनल होते हैं मोस्टली, दीज आर नॉन फिक्शनल and proper high level RCs. So these are were the dominant genres in CLAT 2021. अब एक बार पैसेज की थीम्स देखते क्या थी। सो एब्स्ट्रैक्ट मॉरल रीजनिंग पे था, कॉलोनियल हिस्टोरिकल नैरेटिव्स पे था, टेक्नोलॉजी एंड सर्वेलियंस पे था, कल्चरल चेंज पे था, जेंडर एंड सोशल बैरियर्स पे था, एजुकेशन एंड इक्वालिटी पे था, ठीक है? देख लो आराम से कि इन पर्टिकुलर जो थीम थी पैसेजेस की वो क्या थी, ठीक है? देन क्वेश्चन का स्टाइल क्या था 2021 में, जो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल था इंग्लिश आरसी सेक्शन में वो कैसा था? 90% जो क्वेश्चन थे वो इन्फरेंस बेस्ड थे, ठीक है? हैवी, व्हाट कैन बी इम्प्लाइड, व्हाट कैन बी इम्प्लाइड, इस टाइप का क्वेश्चन था कि क्या इम्प्लाई हो सकता है, ठीक है? आर्गुमेंट फ्लो, टोन एंड सेंट्रल आइडिया पे आपको ध्यान देना है आरसीज के। ऑलमोस्ट नो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कोई सा भी आपसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था, एंड जीरो वोकैबुलरी इन द वर्ड मीनिंग सेंस। सो आपसे कोई वोकैब वहां नहीं पूछ रहा है, इसका सिनोनिम बता दो, इसका एंटोनिम बता दो, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सब आपसे वहां कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है? पैटर्न सिग्नल क्या है? 2021 एस्टेब्लिश्ड द क्लैट आइडेंटिटी फॉर इंग्लिश, डेंस पैसेजेस, ठीक है? डेंस पैसेजेस दैट रीड लाइक यूनिवर्सिटी एसेज, नॉट स्कूल आरसीज, ठीक है? हाई लेवल आरसीज है, वही मैंने कहा था। सो इंग्लिश फ्रॉम क्लैट 2022 आप अगर देखोगे तो 5 पैसेज आए थे, डिफिकल्टी मॉडरेट टू हाई थी। डोमिनेंट जॉनरास अब यहाँ कौन कौन थे? सो कंटेम्प्रेरी पॉलिसी एसेज, मीडिया डेमोक्रेसी एसेज, बिहेवियर साइकोलॉजी, हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड लिटरेरी कल्चरल एसेज, ठीक है? थीम क्या क्या थी? डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पब्लिक कॉन्वर्जेशंस, बायसेस एंड अटेंशन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ कन्फ्लिक्ट्स एंड पॉलिटिकल चेंज, कल्चरल आइडेंटिटी एंड लिटरेचर एंड मॉडर्न सोसाइटी एंड बिहेवियरल शिफ्ट्स, ठीक है? क्वेश्चन का जो स्टाइल था वो कैसा था? सो द पैसेजेस वर बिट कंप्रेस्ड, ठीक है? वेरी टाइट इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, मल्टीपल स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग एंड असम्पशन स्टाइल क्वेश्चंस, ठीक है? मतलब आप देख रहे हो थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग वाला एलिमेंट आ चुका है इंग्लिश में, एंड टोन एप्टीट्यूड क्वेश्चंस हैव इंक्रीज, ठीक है? तो पैटर्न का सिग्नल अब क्या 2022 में मेरा क्या एनालिसिस है? सो 2022 इंट्रोड्यूस द सीआर इंटीग्रेशन ट्रेंड, कि इंग्लिश में ही सीआर भी थोड़ी सी डाल दो, क्रिटिकल रीजनिंग एम्बेडेड इनसाइड आरसीज, ठीक है? सो दिस वाज अ बिट गुड थिंग फॉर यू, बिकॉज सीआर बेस्ड अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपके 2 सेक्शन ही हुए जा रहे हैं, क्रिटिकल रीजनिंग भी अलग से आता है, तो आप इंग्लिश में भी अगर वो चीज़ कर पा रहे हो ठीक से, तो आप 2 सेक्शन, बेसिकली एक ही सेक्शन है वो, ठीक है? नाम दो हो गए उसके बस। सो इंग्लिश फ्रॉम क्लैट 2023 अगर हम बात करते तो अगेन 6 पैसेजेस थे। इस बार डिफिकल्टी हाई थी, मोस्टली फिलोसफिकल और पॉलिटिकल के मिक्स थे, फिलोसफिकल पॉलिटिकल मिक्स थे। डोमिनेंट जॉनरास क्या क्या था? पॉलिटिकल थ्योरी, फिलोसफी के अराउंड थे, फेमिनिस्ट एसेज थे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स था, ठीक है? इन्वायरमेंटल एथिक्स के अराउंड था एंड कल्चरल सोशियोलॉजी के अराउंड था, राइट? सो पैसेज की थीम कैसी थी? सो पब्लिक मोरालिटी एंड पावर स्ट्रक्चर्स रिपीट हो रहा है, पब्लिक मोरालिटी, जेंडर रिप्रेजेंटेशन, नेचर एंड एनवायरनमेंट रिपीट हो रहा है, लिटरेरी एनालिटिक्स, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, स्पेक्युलेटिव फिक्शन एंड कल्चर एंड सोशल इक्वालिटी एंड इंस्टीट्यूशंस, राइट? सो क्वेश्चन का स्टाइल कैसा था 2023 की अगर हम बात करें तो? सो एक्सट्रीमली डेंस पैराग्राफ लेवल इन्फरेंस, अगेन इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहा है, हिडन एजम्पशन क्वेश्चंस भी थे कुछ, ठीक है? कुछ एजम्पशन बेस्ड भी थे, इंटरप्रिटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लेम्स, राइट? देन विच ऑप्शन बेस्ट कैप्चर्स द ऑथर्स इंटेंट, ठीक है? ऑथर की टोन को फिगर आउट करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो। 2 पैसेजेस रिक्वायर डीप कंसेप्चुअल मैपिंग, ठीक है? 2 पैसेजेस के लिए बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल मैपिंग होनी डीप रिक्वायरमेंट थी, ठीक है? पैटर्न सिग्नल 2023 मार्क्स क्लैट्स मूव टुवर्ड्स कंसेप्ट हैवी ह्यूमैनिटीज पैसेज, थोड़ा सा कंसेप्ट हैवी मोर ह्यूमैनिटीज पैसेज, वो स्टाइल देख के भी समझ में आ ही रहा है, ठीक है?
देन 2024 की अगर हम बात करें तो अगेन 5 पैसेजेस थे, डिफिकल्टी बैलेंस थी, मीडियम हैवी थे, ठीक है। डोमिनेंट जॉनरास क्या क्या था, पब्लिक पॉलिसी अगेन रिपीट हो रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री फर्स्ट टाइम आया, पॉलिटिकल फिलोसफी राइट रिपीट हुआ, देन बिहेवियरल साइंस नया टॉपिक है, पॉपुलर साइंस थोड़ा सा नया जॉनरा है, ठीक है। देन पैसेज की थीम कैसी थी, सो इट वाज अराउंड डेमोक्रेसी, डिसेंट, माइग्रेशन एंड बिलोंगिंग, रेशनैलिटी एंड ह्यूमन बिहेवियर, क्लाइमेट एंड साइंस, कम्युनिकेशंस एंड आपका कल्चरल आइडेंटिटी एंड सोशल चेंज, राइट। देन क्वेश्चन स्टाइल कैसा था, मोर एसेसिबल देन 21-23, थोड़ा सा इजी था कंपेयर टू 21-23, स्टिल 80% इन्फरेंस बेस्ड ही है, वन पैसेज हैड सीआर स्टाइल वीकनिंग स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। देन टोटल टोन एटीट्यूड रिपीट क्वेश्चंस आ रहे थे, टोन या एटीट्यूड के अराउंड की टोन ऑफ द पैसेज क्या है, या एटीट्यूड ऑथर्स एटीट्यूड, ठीक है। देन एप्लीकेशन ऑफ आइडिया आउटसाइड एग्जांपल, सो पैटर्न सिग्नल्स क्लैड इंटेंशनली मेड इंग्लिश फेयर बट स्टिल कंसेप्चुअल, ठीक है। दे बैलेंस जॉनरास, वन फिलोसफी प्लस वन साइकोलॉजी प्लस वन पॉलिसी प्लस वन हिस्ट्री प्लस वन साइंस, मतलब अब फिलोसफी हैवी, ठीक है, या पॉलिटिकल हैवी की एक ही जॉनरा के 2 या 3 पैसेज आ गए, ऐसा नहीं हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे जॉनरा, एक जॉनरा से एक ही पैसेज आ रहा था, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर, सो 6 पैसेजेस थे और इजी था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो डोमिनेंट जॉनरास वर लिटरेरी मॉडर्निज्म, बिहेवियरल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल फिलोसफी, कंटेम्प्रेरी कल्चर, साइंस एंड रेशनैलिटी एंड हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, राइट। देन पैसेज थीम की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वुल्फ स्टाइल एनालिसिस था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, देन मॉडर्न अटेंशन क्राइसिस, लिबरलिज्म वर्सेस कलेक्टिव वेलफेयर, देन कल्चरल कंजम्पशन पैटर्न्स, साइंस रीजनिंग एम्पिरिकिज्म एंड आइडेंटिटी सोसाइटी एंड मॉडर्न चेंज, ये पैसेज थीम्स थे लास्ट ईयर के, ठीक है। क्वेश्चन स्टाइल कैसा था, क्लैड डिलिबरेटली केप्ट डिफिकल्टी कंट्रोल्ड, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लिटरेरी पैसेजेस रिटर्न, वापस से अब 2023 के बाद थोड़ा सा लिटरेरी सॉर्ट ऑफ पैसेजेस वापस आए, लॉट्स ऑफ टोन प्लस प्राइमरी पर्पस, मैनी विच एग्जाम्पल फॉलोज द लॉजिक, थोड़ा सा अगेन सीआर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 to 30% क्वेश्चन डिस्गाइज सीआर, मतलब क्रिटिकल रीजनिंग ही थी, ठीक है, बस इंग्लिश के नाम पर क्रिटिकल रीजनिंग। पैटर्न सिग्नल क्या करा, 2024-5 रीइंट्रोड्यूसेस लिटरेरी फिलोसफिकल ब्लेंड प्लस साइकोलॉजी, सो अक्रॉस 5 years क्लैट इंग्लिश ऑलवेज यूजेस एग्जैक्टली दीज 5 जॉनरास, ठीक है। कौन से 5 जॉनरास हैं, जॉनरा वन इज फिलोसफी, एब्स्ट्रैक्ट थॉट। अब स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा ध्यान से देखो कि कौन से जॉनरास आपके इस साल के लिए जरूरी हैं, तो अगर इंग्लिश की प्रैक्टिस करो तो वहीं की प्रैक्टिस नहीं, इन्हीं जॉनरास की प्रैक्टिस करना, ठीक है। सो रिकरिंग थीम्स क्या क्या है, मोरालिटी, पावर, ह्यूमन नेचर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम वर्सेस कॉन्स्ट्रेंट्स और एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। एवरी ईयर अपीयर्स एवरी ईयर, दिस इज क्लैट सिग्नेचर, ठीक है। तो फिलोसफिकल तो बहुत ही ज्यादा क्लैट में फेमस है, आते ही है फिलोसफिकल आरसीज, ठीक है। देन जॉनरा 2 इज पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अराउंड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है। लास्ट ईयर भी था इंपॉर्टेंट, इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इलेक्शंस हुए हैं स्टेट्स में, सो अभी रिसेंटली बिहार इलेक्शन भी हुआ है, तो सेंसरशिप, डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस, अब इस साल जैसे वोट चोरी का बात हो तो वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से बना एक इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन, वो टारगेट है, तो काफी सारा कंटेंट होगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप उसकी प्रैक्टिस करो ठीक से। देन डिसेंट राइट्स, पॉलिसी इफेक्टिवनेस, इनइक्वालिटी, ठीक है, अपीयर्स एवरी ईयर, ठीक है, गवर्नेंस या डेमोक्रेसी के अराउंड के आरसीज। देन साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइंस, ठीक है। तो थीम्स इसमें क्या क्या है, अटेंशन इकोनॉमी, कॉग्निटिव फेलियर्स, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन एंड डिजिटल इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये भी कंटिन्यूसली आता रहता है साइकोलॉजी बेस्ड आपके आरसीज, ठीक है। देन साइंस टेक एनवायरनमेंट बेस्ड आरसीज, साइंस टेक या एनवायरनमेंट बेस्ड आरसीज इंपॉर्टेंट है, पिछले कुछ सालों से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जिसमें क्लाइमेट एथिक्स की बात हो, साइंस कम्युनिकेशन का हो, एआई एंड सोसाइटी, रेशनैलिटी वर्सेस बिलीफ एंड टेक एंड ह्यूमन बिहेवियर, इट अपीयर्स एवरी ईयर एज वेल। देन जॉनरा 5 इज कल्चर, लिटरेरी एनालिसिस, हिस्ट्री थीम्स, ठीक है। तो आपका जिसमें नैरेटिव फॉर्म्स, मॉडर्निज्म, कल्चरल एवोल्यूशन, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग एंड हिस्टोरिकल रीजनिंग, ठीक है। तो दीज 5 जॉनरास आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, मेक श्योर आप ये अच्छे से करके जाना। अब अगर फाइनल क्वेश्चन टाइप पैटर्न की बात करें तो क्लैट इंग्लिश प्राइमरीली टेस्ट, ये लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस है, 60 to 70% तो आपका इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मेन आइडिया, टोन, एटीट्यूड के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ऑथर्स लॉजिक, ऑथर का लॉजिक क्या है, ठीक है। देन हिडन अजम्पशंस, देन स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग, देन एनालॉजी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ऑथर्स पर्पस, स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड जीरो डायरेक्ट वोकैबलरी या ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। ये पार्ट आप अच्छे से कर लेना, इतना अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका इंग्लिश का मतलब अच्छे से हो जाएगा हिसाब, ठीक है। देन
मतलब जो इंग्लिश में आरसीज में आपसे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाने वाले हैं, तो मेक श्योर आप इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, मेन आइडिया वाले क्वेश्चन, एप्लीकेशन क्वेश्चन, एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग बेस्ड क्वेश्चन, इनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। देन मूविंग अहेड, पैसेज रिक्वायर्स रीडिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, अंडरस्टैंडिंग नॉर्मेटिव क्लेम्स, कनेक्टिंग आइडियाज, जहां पे आपको तार जोड़ने पड़ते हैं जो ऑथर कह रहा है, ठीक है, एंड रिजेक्टिंग ऑप्शंस दैट गो बियॉन्ड पैसेज, राइट। तो प्रिडिक्शन क्या है, यूजिंग द 5 year cycle देयर आर ओनली टाइप्स ऑफ पैसेजेस, दीज आर द ओनली टाइप ऑफ पैसेजेस क्लैट कैन सेलेक्ट, सो यू विल गेट 5 to 6 पैसेजेस, दे विल फॉलो दिस फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इस साल जिससे जिन थीम से क्वेश्चन आ सकता है, जिन जॉनरा से क्वेश्चन आ सकता है, वो देख लेते हैं। सो द फाइनल 5 प्रेडिक्टेड पैसेजेस थीम, फिलोसफी ऑफ एजेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कलेक्टिव मोरालिटी। व्हाई? बिकॉज दिस अपीयर्ड इन ऑल 5 years with different faces, ठीक है। 2026 will repeat it because it is the easiest genre to make inference questions from, ठीक है। तो philosophical based question आरसी तो एक आने वाला है, ठीक है। expected angle क्या हो सकते हैं, why people avoid responsibility, ठीक है, collective actions failure, human motivation and freedom versus structural limits। then second important RC genre for you is democracy, public disclosure and information crisis। 2024-25 हॉट थीम रहा है ये, ठीक है। तो पिछले आप देख सकते हो 2022, 23, 24, 25 4 साल में ऑल यूज डेमोक्रेसी पॉलिसी बेस्ड आरसीज। पोलराइजेशन प्लस मिस इन्फॉर्मेशन इज करेंटली एकेडमिक गोल्ड। सो एक्सपेक्टेड एंगल्स क्या है, डीके ऑफ डायलॉग, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक रीजन वर्सेस आउटरीच एंड मीडिया इकोसिस्टम्स। Then moving ahead is the psychology of attention, cognitive overload and online behavior। Why it is important? Because it has again been repeated several times from CLAT 2022 till 2025। 2022, 24, 25 heavily used psychology। Then 2025 attention span crisis was full trending theme। Expected angle क्या क्या इसमें से आ सकते हैं, short form content versus deep reading, digital distraction, cognitive scarcity and behavioral manipulation, right? Then the fourth important genre for your CLAT English is AI, knowledge authenticity and human judgment। Why? Because text sections in GK plus legal overlap, CLAT tends to synchronize theme across sections। हाँ, ये एक चीज़ है स्टूडेंट्स कि ना CLAT को एक ही थीम को ना अलग अलग सेक्शंस में सिंक्रोनाइज करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, कह सकते हैं। सो ये भी एक आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जॉनर है। एक्सपेक्टेड एंगल इसमें से, अब वही जो डीप फेक ट्रुथ क्राइसिस के अराउंड काफ़ी चीज़ें चल रही, तो हो सकता है इस पे से आरसी आ जाए, ठीक है। हाउ एआई चेंजेस एपिस्टेमोलॉजी, ह्यूमन वर्सेस मशीन रीजनिंग एंड एथिकल डायमेंशन ऑफ एआई लिटरेसी, राइट। Then the last important genre for you is literature, narrative identity and cultural change। Why? Because literary passages appeared in 2021, 2022 and 2023 and 25। CLAT is pushing humanities literacy, ठीक है। expected angle क्या क्या इसमें, so modernism and stream of consciousness, changing narrative forms, identity in literature and culture in digital age। so students, I hope कि आपको अभी तक लीगल रीजनिंग, जीके करंट अफेयर्स, इंग्लिश, इन 3 सेक्शंस में अब बचे हुए 10-12 दिन में किन किन पॉइंट पे सिर्फ कंसंट्रेट करने, समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन डी, सो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ठीक है। तो अब इसका ईयर वाइज ब्रेकडाउन भी एक बार देखते हैं, ठीक है। सो क्लैट क्वांट्स इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम 2021, तो टोटल 3 सेट्स आए थे। डिफिकल्टी वही आपकी मॉडरेट टू हाई रहती है, लॉन्ग पैसेज होते हैं, ट्रिकी परसेंटेजेस होती है, ठीक है। डोमिनेंट कंसेप्ट क्या क्या होते हैं, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रपोर्शन, बेसिक अर्थमेटिक एंड टेबल ग्राफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। टेबल ग्राफ इंटरप्रिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन पैटर्न्स क्या क्या क्वेश्चंस में होते हैं, तो मल्टी लेयर्ड परसेंटेज चेंजेस, कंबाइंड रेशियोज, प्रॉफिट चेंज, सीपी, एमपी, एसपी विद डिस्काउंट्स, ठीक है। देन आपका 2 लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीड द पैसेज केयरफुली, ट्रैप कंटेक्स्ट, इररिलेवेंट नंबर्स हिडन सबटली, ठीक है। तो पैटर्न सिग्नल क्या है, 2021 का क्या इशारा कर रहा है, सो 2021 इस्टेब्लिश द डीआई प्लस परसेंटेजेस बैकबोन ऑफ क्लैट क्यूटी। तो क्लैट क्यूटी की बैकबोन है डीआई प्लस परसेंटेजेस, ठीक है। नो अलजेब्रा, कोई आपसे अलजेब्रा, कोई ज्योमेट्री, कोई मेंसुरेशन का टॉपिक या इक्वेशंस वगैरह आपसे कोई नहीं करवाने वाला, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट 2022, तो 3 सेट्स आए थे अगेन डीआई के। देन मॉडरेट थी डिफिकल्टी, हाई बट स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस थी, ठीक है। डोमिनेंट कंसेप्ट क्या कहते हैं, परसेंटेजेस, ठीक है, ग्रोथ, डीके, एवरेजेस एंड वेटेड एवरेजेस, सिंपल रेशियो पजल्स, पाई चार्ट प्लस टेबल कॉम्बिनेशंस एंड डिस्काउंट एंड प्रॉफिट्स, राइट। देन पैटर्न क्या था क्वेश्चंस में, तो सक्सेसिव परसेंटेजेस के क्वेश्चन थे, मल्टी लेयर कंपैरिजन था, एवरेज बेस्ड रीजनिंग थी, डिफरेंस इन परसेंटेज शेयर टाइप क्वेश्चंस एंड 1-2 ट्रिक क्वेश्चंस विद मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। पैटर्न सिग्नल क्या कहता, 2022 टाइटन्स द आइडिया दैट क्लैट क्यूटी इज इक्वल्स टू
इंटरप्रेट, कैलकुलेट, रीजन, नॉट फॉर्मूला हैवी। तो स्टूडेंट्स अगेन मैं आपको वही चीज़ कह रहा हूँ कि क्लैट क्यूटी से जो आप लोगों का एक डर है ना कि मैं मैथ्स छोड़ूंगा, क्वांट्स छोड़ूंगा, आपको छोड़ना नहीं है। आपसे वहाँ पे कोई बहुत हाई लेवल की मैथ्स नहीं कराई जा रही, बहुत बेसिक मैथ्स आपसे कराई जा रही है। आप देख लो आपके सामने प्रॉपर डीप एनालिसिस है, क्वेश्चन पेपर खोल खोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो अगेन टॉकिंग अबाउट क्लैट क्वांट्स फ्रॉम 2023, तो 3 सेट्स वर देयर, डिफिकल्टी वॉज मॉडरेट, मोस्ट स्कोरिंग क्वांट का सेक्शन एवर 2023 का, ठीक है। डोमिनेंट कंसेप्ट क्या क्या थे, ज्यादा ग्राफ थे इस बार, मोर डीआई बेस्ड था, तो बार लाइन टेबल ब्लेंड, ठीक है, परसेंटेजेस, रेशियो, एवरेजेस एंड सिंपल इंटरेस्ट स्टाइल नैरेटिव विदाउट फॉर्मूला। देन पैटर्न क्या क्या था क्वेश्चन का, बहुत इजी बार ग्राफ इंटरप्रिटेशन था, स्ट्रेट परसेंटेज डिफरेंस था, ठीक है, रेशियो ऑफ सब ग्रुप्स पूछा जा रहा था एंड एवरेज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन टेबल्स। सो इंक्रीज डिक्रीज बाय परसेंटेज, इस टाइप के क्वेश्चन बाय x% रिपीट हो रहा था इस टाइप के क्वेश्चन। सो पैटर्न सिग्नल क्या है, 2023 शोज क्लैट वांट्स क्यूटी टू बी एसेसिबल बट स्टिल रीजनिंग बेस्ड, नॉट फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, क्योंकि पूरा ही आप क्लैट देखोगे ना, पूरा एग्जाम ही रीजनिंग बेस्ड है। क्लैट इज अ रीजनिंग बेस्ड पेपर, ठीक है, नॉट रोट मेमोरी बेस्ड एग्जाम। तो आपसे क्यूटी में भी ना मतलब फॉर्मूला नहीं चाहता है कि आप कोई फॉर्मूला रट के वहां पहुंचो, रीजनिंग बेस्ड क्वांट्स आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। देन क्लैट क्वांट्स फ्रॉम 2024, तो अगेन 3 सेट्स वर देयर, डिफिकल्टी वाज मॉडरेट टू हार्ड, डेटा हैवी था इस बार क्योंकि हाँ काफी ज्यादा डेटा दिया हुआ था। तो डोमिनेंट कॉन्सेप्ट्स क्या क्या थे इस बार, मल्टी वेरिएबल टेबल्स, परसेंटेज चेंजेस इन 3 ईयर सीक्वेंस, वेटेड एवरेजेस, रेट टाइप रीजनिंग बट नो स्पीड टाइम फॉर्मूला एंड रेशियो मिक्सिंग, ठीक है, रेशियो मिक्सिंग इस बार थोड़ा सा रिलेवेंट हो गया था। पैटर्न्स क्या क्या थे क्वेश्चन के, लार्ज टेबल विथ 5-6 कॉलम्स, वेरी क्लैटिश टाइप, जैसे क्लैट के में आप देखते हो ना डीआई बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो 5-6 कॉलम्स अलग अलग दिखते ही हैं काफी सारे, राइट। देन आपका मल्टी लेयर इंटरप्रिटेशन, then combined ratios across categories एंड ट्रिकी डिफरेंस इन परसेंटेज क्वेश्चन। सो पैटर्न सिग्नल क्या कर रहा था 2024 का कि 2024 रिवील्स द एग्जैक्ट क्लैट क्यूटी सिग्नेचर, लॉन्ग डेटा ब्लॉक्स, मॉडरेट कैलकुलेशन, लॉजिकल एक्सट्रैक्शन एंड 1 to 2 ट्रिक एंट्रीज इन टेबल्स, राइट। देन क्लैट क्वांट्स फ्रॉम 2025, लास्ट ईयर कैसा था, 3 सेट्स थे, अगेन डिफिकल्टी मॉडरेट थी, क्लीनेस्ट क्वांट सेक्शन सिंस 2021। डोमिनेंट कंसेप्ट क्या कहता है, टेबल रीडिंग, परसेंटेज चेंज, रेशियोज, कंबाइंड ग्रोथ कैलकुलेशन एंड एवरेजेस, फाइन। सो पैटर्न इन क्वेश्चंस क्या कहते हैं इन 2025, पैसेज विद सोशल डेटा, एजुकेशन, पॉपुलेशन स्कीम्स, ठीक है, 0 कॉम्प्लेक्स मैथ, 7 to 10 questions purely on percentage difference, 1 table based weighted average set and 1 tricky hidden total question, classic CLAT trap. Then pattern signal क्या कहता है, 2025 confirms that CLAT quant is equals to data interpretation plus arithmetic plus reasoning, not mathematics, not this is not pure mathematics, ये totally DI based काम चल रहा है यहाँ पे। तो अब तक आपका डर मिट गया होगा, अब क्या इस साल मैथ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनल 5 ईयर क्वांट सिग्नेचर 2021 टू 2025, अभी हम लोगों ने जो ब्लूप्रिंट निकाला वो क्या है, सो दिस इज द कोर ब्लूप्रिंट, द एग्जामिनर्स मैथमेटिक्स डीएनए, क्लैट एवरी ईयर पिक्स एग्जैक्टली 3 सेट्स ही आने वाले हैं एंड ईच सेट ऑलवेज बिलोंग्स टू दीज बकेट्स। तो पहला बकेट क्या होगा आपका, परसेंटेज, ठीक है, डीआई सेट गारंटीड एवरी ईयर, मोस्ट रिपीटेड सक्सेसिव परसेंटेज, डिफरेंस इन परसेंटेज, शेयर कंट्रीब्यूशन परसेंट, ग्रोथ फॉल नेट परसेंट, दिस अपीयर्स ऑल 5 ईयर, पूरे 5 साल ही आया, ठीक है। देन रेशियो प्रपोर्शन सेट, ठीक है, एक तो आपकी डीआई एवरेज सेट हो गया, ये वाला पहला बकेट जिसमें से क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज डीआई सेट हो गया। देन रेशियो प्रपोर्शन सेट, तो इसमें सब ग्रुप रेशियोज, कंबाइंड रेशियोज, पार्ट टू होल, मेल फीमेल, रूरल अर्बन, एबीसी कैटेगरीज, हर साल आता है ये, ठीक है। देन लास्ट इज टेबल इंटरप्रिटेशन है, डीआई इंटरप्रिटेशन। सो कॉम्प्लेक्स टेबल्स आपको दिए होते हैं, ईयर एक्स वर्सेज ईयर वाई, शेयर ऑफ कैटेगरी, कंपेयरिंग यूनिट्स। तो 4 of 5 ईयर्स हैड वेरी लार्ज टेबल्स, ठीक है, 4 साल बहुत ज्यादा हाई टेबल्स थी। देन लास्ट टेबल इज एवरेजेस, वेटेड एवरेजेस सेट, सो पॉप्स अप इन द लास्ट 3 ईयर्स क्लियरली, 2022, 23, 25 एंड इज नेस्टेड इन अदर्स, ठीक है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट लॉजिक, तो ओनली इन 21 एंड 22 आया बट अपीयर्स इन डिस्गाइज्ड फॉर्म इन लेटर ईयर। प्रॉपरली 21 और 22 में पूछा गया, बाकी बाद में फिर डिस्गाइज फॉर्म में इससे क्वेश्चन आए, ठीक है। तो थिंग्स क्लैट नेवर आस्क्ड इन 5 ईयर्स। अब हम एक वो
कंक्लूजन निकाले थे कि क्लैट ने पिछले 5 साल में क्या क्या नहीं पूछा। तो एल्जेब्रा कभी नहीं पूछा, मेंसुरेशंस कभी नहीं पूछा, ज्योमेट्री कभी नहीं पूछा, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लॉग्स, परम्यूटेशंस, प्रोबेबिलिटी, नंबर थ्योरी, ये सब इनमें से कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, अभी जिनको टेंशन होती है कि क्लैट क्वांट्स कैसे होगा कैसे नहीं होगा, भैया आपसे तो ये पूछा ही नहीं जा रहा जो असली मैथ्स है। ठीक है, तो क्लैट क्वांट फिर क्या है? क्लैट क्वांट इज नॉट मैथ्स, क्लैट क्वांट इज इक्वल्स टू DI प्लस बेसिक अर्थमेटिक लॉजिक। ऑलराइट, सो हाउ क्लैट स्ट्रक्चर्स अ क्वांट सेट। अब सेट कैसा आता है वो देख लेते हैं। तो एवरी ईयर क्वांट पैसेज हैज द सेम एनाटॉमी, एक ही जैसी एनाटॉमी होती है। पहले पैसेज दिया होता है, कोई लॉन्ग सोशल इकोनॉमिक स्टोरी होती है या उसके बारे में स्टैट्स होते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिटरेसी डेटा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स ऑफ बुक्स, स्पोर्ट्स स्टैट्स और स्कीम आउटकम्स। राइट, तो डेटा ब्लॉक्स क्या क्या किस टाइप में आपको डेटा ब्लॉक्स दिए जाते हैं? तो टेबल फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में, मिक्स चार्ट में और मल्टी ईयर कंपेरेटिव नंबर्स में। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं, 70% क्वेश्चन परसेंटेजेस बेस्ड होते हैं, 20% रेशियो, 10% एवरेजेस, समटाइम्स वन ट्रैप क्वेश्चन। सो दिस इज कंसिस्टेंट टिल फ्रॉम 2021 टू 2025। राइट, तो अब क्लैट 2026 का अगर हमें मॉडल प्रेडिक्ट करना है क्वांट्स का, तो कैसे करेंगे? सेट 1 क्या हो सकता है? परसेंटेज बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब DI बेस्ड परसेंटेजेस का क्वेश्चन आ सकता है सेट 1 से। ठीक है, 110% गारंटी है इसकी, एवरी ईयर रिपीट होता ही है। ठीक है, देन सेकंड इज रेशियो बेस्ड टेबल। ठीक है, तो सब सेम पैटर्न अगेन फॉर फ्रॉम द लास्ट 5 years। एंड सेट 3 मिक्स डेटा, एवरेजेस प्लस परसेंटेज प्लस रेशियो। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है ना, तो हमने अपना iQuanta के यूट्यूब चैनल में पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, काफी सारे, उसमें हमने इस तरीके से लाइव प्रैक्टिस सॉल्विंग करवाई है। तो डू अटेम्प्ट दोस टेस्ट्स एज वेल। फाइन। सो क्लैट 2026 मोस्ट एक्सपेक्टेड QT सेट थीम्स क्या क्या है? फाइनल 5 देख लेते हैं। तो लिटरेसी एजुकेशन डेटा, मोस्ट रिपीटेड सोशल डेटा सेट, मतलब आपसे जो टेबल्स पूछेंगे ना, तो वो किसके अराउंड हो सकते हैं? वो टेबल्स जो डेटा दिया जाता है, तो लिटरेसी एजुकेशन का कोई डेटा हो सकता है, मेल फीमेल लिटरेसी, स्टेट वाइज ग्रोथ, कैटेगरी कंपेरिजन, रूरल अर्बन ब्रेकडाउन। राइट, देन पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है आपसे, पॉसिबल एंगल, एज ग्रुप्स, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज इंक्रीज इन माइग्रेंट्स और अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज। Then scheme, public welfare, budget allocation data. So CLAT loves governance linked DI sets. तो example health spending कितनी हो रही है, स्कूल इनरोलमेंट्स क्या रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन और सोशल सेक्टर ग्रोथ। तो स्कीम या पब्लिक वेलफेयर बजट एलोकेशन डेटा, इसके अराउंड का भी डेटा, मतलब आपको हो सकता है कि इसके अराउंड का डेटा कुछ दे के आपसे पूछ ले क्वेश्चंस। देन सेल्स प्रोडक्शन मार्केट डेटा, बिजनेस स्टाइल DI, आपको हो सकता है सेल्स ऑफ बुक्स के बारे में डेटा दे दे, DI बेस्ड ही, ग्राफ या पाई चार्ट फॉर्म में, और उस पर फिर एवरेजेस का या रेशियो का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड लास्ट लिस्ट स्पोर्ट्स डेटा, टूर्नामेंट स्टैटिस्टिक्स। तो क्वांट फ्रेंडली डेटा सेट, रन्स, विकेट्स, इतने रन्स गिर गए, इतने विकेट्स, गोल्स या इतने पॉइंट्स हो गए, इतने मेडल्स है, ईयर वाइज के परफॉर्मेंस देकर आपसे उस पे बेस्ड फिर डेटा DI सेट्स पूछ सकते हैं। राइट, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। एंड हमने लॉजिकल रीजनिंग अभी कवर नहीं किया, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग में एक ही हम देख सकते हैं, एक ही पैटर्न है, इट इज टोटली बेस्ड अपॉन प्योर प्रैक्टिस। सो students, this was all for today, and I hope that this video will help you a lot in your preparation. My only motive to create this video was, just to make sure that as an aspirant, or being an aspirant some time ago, I can feel myself ki, I don't want to, waste my or drag my time in doing unnecessary things. And someone as your own, your elder brother, you can consider me your elder brother, your mentor, I would just like to make sure ki you are not wasting your time here and there. So that's why I came up with this analysis, this detailed breakdown, to give you at least a rough idea of what is important for you, what can be sure shortly asked in the CLAT 2026 examination, and whatever we have discussed right now, trust me or not, but this is literally going to be the best time where you have invested in your preparation, and this is going to help you in your preparation a lot. And I hope कि हमने यहाँ पे जो चीज़ें करी, I hope नहीं, I believe कि उनमें से questions आने वाले हैं, passages आने वाले हैं, तो pay attention over the things which we have discussed in this session throughout. And I wish you all the very best, and just stay ahead in your preparation. Do ask for anything in the comment section if you want to, if you have any doubt, confusion, query, and just keep studying. All the very best, keep your motivation high, and if you need any further guidance, further help, just let me know in the comment section, and team iQuanta is always there for you. So all the very best, take care.